In this question, I am taking a situation regarding charging a capacitor. So this is situation I have taken from 200 puzzling problem physics. So the situation says a battery consists of n identical cells, each of EMF E. Is it true that energy wasted means heat generated, when using the battery to charge a capacitor through a resistor can be reduced by charging it in n stages, that is by connecting it first across a single cell, then across two cells, and then so on, rather than across the whole battery in a single step. So in this situation basically they are asking कि अगर कैपेसिटर को अगर एक सिंगल स्टेप में चार्ज करें टू द रिक्वायर्ड वोल्टेज, तो उस केस में क्या हीट ज़्यादा जनरेट होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम कैपेसिटर को n स्टेजेस में यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसकी चार्जिंग करें. तो स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग करने का मतलब है कि अगर मैं चार्जिंग सपोज़ अगर मैं n इंटू ई तक करना चाहता हूँ, अगर मैं चार्जिंग इसके n इंटू तक करना चाहता हूँ, तो पहले ई से फिर उसके बाद में फिर एक और बैटरी कनेक्ट कर दिया, फिर 2e चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद एक और बैटरी कनेक्ट कर दी. तो एक एक करके एक एक स्टेप में यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाए रादर देन इन ए सिंगल स्टेप. तो सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम इसी तरह के क्वेश्चन देयर वाज इन जे एडवांस 2017. इट वाज इन पैराग्राफ, और एक बार मैं इसको भी रीड कर देता हूँ. तो कंसिडर अ सिंपल आरसी सर्किट एज ऑन इन दिस फिगर 1. Two processes are described. So process 1 is basically single step charging and process 2 is basically the multi-step charging. So in the circuit, the switch S is closed at t is equal to 0 and capacitor is fully charged to voltage V0 to the required voltage. In the process, some dissipation, that is heat generated across the resistance R. The amount of energy finally stored in the fully charging capacitor is denoted by EC. And the process 2 is, in a different process, the voltage is first set to V0 by 3 and maintained for a charging time t much greater than RC. That means it is much greater than the time constant. So we can assume that we are giving sufficient time for full charging. And then the voltage is raised to 2 V0 by 3. That is in the next step V0 by 3 is added, and in the process repeated one more time by raising the voltage to V0. So now V0 by 3 is added again. So this capacitor is charged to V0 in 3 steps. Okay, so जो JEE में क्वेश्चन they asked वो 3 स्टेप की चार्जिंग थी वहाँ पर. तो यहाँ पे इन जनरल n स्टेप की चार्जिंग से रिलेटेड यहाँ पर है. तो लेट मी कैलकुलेट दिस थिंग एंड देयर वर सम क्वेश्चंस एंड लेट्स डू दिस क्वेश्चंस. और मैं इसके एनालिसिस करूँगा और उस एनालिसिस में वी कैन गेट द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस ऑल्सो. तो यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट कि व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन दी टू प्रोसेसेस when we charge it in a single step, when charge in n stages. Okay, so let us solve this situation. So पहला सिचुएशन में यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर मैं सिंगल स्टेप में अगर इसकी चार्जिंग कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, तो सिंगल स्टेप चार्जिंग, ठीक है. तो अगर सिंगल स्टेप चार्जिंग करते हैं तो लेट्स से दिस इज़ कैपेसिटर, दिस इज़ बैटरी, और ये डायरेक्टली n इंटू ई के इक्वल हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस इसका C के इक्वल. तो फाइनली वी नो दैट कि इस पर जो वोल्टेज है वो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगी वो हो जाएगी हाफ CV². तो हाफ C NE², दिस मच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. एंड व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी? सो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू, सो इस पर जो चार्जेस हैं वो कितने हो जाएंगे, +C एंड -C ऑन दिस प्लेट. So that C charge will go through this battery. So work done by battery will be equal to this charge multiplied by this voltage simply. So this is charge multiplied by this voltage. So this is equal to, charge is also equal to NCE. Charge on this will be equal to NCE. Okay, because the battery is Ne. So it is NCE. Okay, here it will be N. So there will be N square. So N square CE². So what is the heat generated? This much is the work done by the battery and this is the energy stored, and initially there was no energy stored in the capacitor. So heat generated, this is very standard calculation.
So just take the difference of these two, so it will be half CE square multiplied by n square. Okay, I am writing it like this. So it is n square into half CE square. This much is the heat generated in single step charging. This much is the heat generated. Okay, and what about when we do it in multiple stages, multi-stage charging? So multi-stage charging means charging step by step. Suppose in first stage I bring this battery only, so charge will be plus CE here and minus CE here, and the heat generated is calculated by work done by battery minus change in potential energy. Okay, so work done by battery minus delta U, this is the heat generated, and work done by battery, what is work done by battery in the first step I am writing. So work done by battery in the first step will be simply the charge flown through the battery multiplied by the EMF. So this is CE square. Okay, and what is delta U? So delta U, I am writing it like this. It is U1. U1 is the energy after the first step, and initially there was no energy, so I can write it equal to 0. Okay, so this is U1, and U1 will be half CE square simply. Okay, U1 is simply half CE square. In second step, so in second step one more battery is added, and this is equal to now 2E. Okay, and I know that final charge will become equal to plus 2 CE and minus 2 CE, and what is the extra charge which is flown through here? That charge will be equal to C, because earlier there was charge C, पहले से यहाँ पे चार्ज C था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा C जाएगा जिससे कि चार्ज 2C के इक्वल हो जाएगा. तो वर्क डन बाय बैटरी इन द सेकेंड स्टेज, सो व्हाट इज द चार्ज फ्लोन? चार्ज फ्लोन इज CE multiplied by the EMF which is 2E, so it is 2 CE square. So this is the work done by battery in this case, and delta U, let's call it as 1 and it is 2, delta U2. So delta U2 is, now what is the energy stored? Let's say this is equal to U2, and what was the initial energy stored? That was U1. Okay, so U2 minus U1. What is U2 here? U2 will be simply half C into 2E square, because the potential difference will be equal to 2E now. तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा. दिस विल बी डेल्टा U2. सो सिमिलरली आई कैन से दैट वर्क डन बाय बैटरी इन द थर्ड स्टेज विल बी, सो एक्स्ट्रा C जाएगा, और लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है वो 3 के बराबर होगी, तो इट विल बी 3C स्क्वायर. इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा U3 इज इक्वल टू U3 माइनस U2. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इन सभी को ऐड करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आई कैन ऐड ऑल दिस थिंग्स टू फाइंड दी total heat generated. So total heat generated will be the total work done by the battery. Total work done by the battery, I can add all these things, and I can add all the delta U's. Delta U total. Okay, total change in potential energy stored in the capacitor. So work done by the battery is C square plus 2C square plus 3C square. You have to add all these things, and you can just write it like this: C square plus 2C square plus 3C square. Okay, so in this way you can write total work done, and if you add all these things, so U1 cancel, U2 cancel, so it is simply the effectively the delta U. Initially potential energy was 0, so final potential energy you have to write, and final potential energy will be simply half C, and what is the final potential difference? That is equal to NE. So simply this is the delta U total. Now you can add these terms, and these are n terms here, total n terms होंगे इसमें. तो C square you can take as common, and it will be 1 plus 2 plus 3 up to n, so it will be n into n plus 1 by 2, and it is n square times half C square. Okay, so now take this as common. Half C square you can take as common, and here it will be n square plus n, and it will be minus n square. So this n square is cancelled, and now you can see for yourself, this is n into half C square,
and it is simply the half of this. Okay, it is simply the 1 by n times of this initial one. So अगर मैं सिंगल स्टेप में चार्जिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे n स्क्वायर इंटू हाफ सी स्क्वायर आंसर आ रहा है, और अगर मैं n स्टेजेस में चार्जिंग कर रहा हूँ यहाँ पे तो वो n स्क्वायर की जगह सिर्फ यहाँ पर n आ रहा है. तो इट इज़ सिंपली द 1 बाई n ऑफ हीट इन सिंगल स्टेप. तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल स्टेजेस में इसके चार्जिंग कर रहा हूँ तो हीट कम जनरेट हो रही है और हीट सिंपली 1 बाई n हो जा रही है. अगर मैं 3 स्टेप में चार्जिंग कर रहा हूँ तो हीट विल बी 1/3. अगर मैं 4 स्टेप में चार्जिंग कर रहा हूँ तो हीट विल बी 1/4 ऑफ द हीट इन द सिंगल स्टेप. तो जितने ज़्यादा स्टेजेस में चार्जिंग हो रही है उतनी ही कम हीट यहाँ पर जनरेट हो रही है एक तरीके से. दिस इज़ 1 बाई n. और अगर मैं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का अगर मैं आंसर करूँ यहाँ पे, लेट अस गो हियर. अब इसमें देख सकते हो कि जो सिंगल स्टेप है उसमें एक तरीके से वर्क डन बाय बैटरी का जो हाफ है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है और हाफ जो है वो हीट जनरेट हो जाती है. तो सीधा सा हिसाब किताब है यहाँ पर इसमें. तो अगर मैं इसमें देखूँ प्रीवियस स्लाइड पे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि इन द प्रोसेस 1 दैट इज़ सिंगल स्टेप में जो चार्जिंग हो रही है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड हीट डिसिपेटेड. सो हीट जनरेटेड एंड एनर्जी स्टोर्ड बोथ विल बी इक्वल. तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी. एंड इन द प्रोसेस 2 द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ED. सो टोटल एनर्जी, सो ED इज़ इक्वल टू, सो अब यहाँ पे देखो कि जो भी यहाँ पर ये वोल्टेज है हाफ CV0 स्क्वायर. ओके, तो हाफ CV0 स्क्वायर के बराबर यहाँ पर हीट डिसिपेट होती है अगर ये सिंगल स्टेप में चार्जिंग होती, क्योंकि फाइनल तो वोल्टेज यहाँ पर किसके बराबर है, V0 के बराबर. तो फाइनल वोल्टेज इज इक्वल टू V0, तो इसके बराबर होती है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप में किया तो उसका 1/3 हो जाएगा. जैसे अभी हमने जस्ट यहाँ पर इसमें देखा था कि यहाँ पर अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर n स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर इसमें n आ रहा था. तो सिंगल स्टेप के कंपैरिजन में 1 बाई n हो रहा था यहाँ पर ये, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 1/3 हो जाएगा. डायरेक्टली इसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके लिए भी कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं. लेकिन हमारे पास में यहाँ पर अब n के लिए रिजल्ट है तो आई एम यूजिंग दैट रिजल्ट डायरेक्टली नाउ. सो इट इज़ नाउ सिंपली 1/3. एंड यू कैन सी ऑल्सो कि जो आंसर देने का पैटर्न है वो भी किस तरीके का है. ठीक है, आंसर देने का जो पैटर्न है, यानी कि जो ये क्वेश्चन बनाया गया है इसमें आंसर देने का पैटर्न भी आप देखो कि 1/3 लिख करके फिर हाफ CV0 स्क्वायर लिखा गया. इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/6 CV0 स्क्वायर, लेकिन ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आई थिंक क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा यहाँ पर ये मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है कि इसमें उन्होंने ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं करवाया. यानी कि किसी ने ये आंसर भी निकाला होगा तो शायद उसने ये सोचा नहीं होगा कि हाँ ये 1/3 हो गया है वहाँ पर उसके कंपैरिजन में. ठीक है, वट एवर इट इज़, सो इट इज़ 1/3 ऑफ दैट, जो कि यहाँ पर कितनी हीट जनरेट होती है हाफ CV0 स्क्वायर, उसका ये 1/3 हो जाएगा सिंपली. तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. और इसको सॉल्व करने के लिए देर इज़ ए ग्राफिकल अप्रोच ऑल्सो, एक ग्राफिकल अप्रोच भी है यहाँ पे. तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच से यहाँ पे कैसे करेंगे इसको. तो पहले मैं सिंगल स्टेप की बात कर लेता हूँ. ठीक है, तो इसमें अब 2 चीज़ें हैं. एक तो है वर्क डन बाय बैटरी. वर्क डन बाय बैटरी सिंपली कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो बैटरी से होकर के कितना चार्ज फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं बैटरी के केस में. और जब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वो कैलकुलेट होती है यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. और एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज जाता है अगर dq, तो और पूरे प्रोसेस में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इससे यहाँ पर ये कैलकुलेट होता है. और या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एरिया अंडर V वर्सेस Q ग्राफ यहाँ पर इस तरीके का आप ड्रॉ कर सकते हो. और क्योंकि V dq है तो आपको Q एक्सेस के ऊपर एरिया निकालना पड़ेगा. और ये जो ग्राफ होगा, अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ तो कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस Q जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ओके, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है इस तरीके का रिलेशन, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा यहाँ पर इसके लिए. तो ये जो ग्राफ है इसमें यहाँ पर ये V हो जाएगा, यहाँ पर एक Q हो जाएगा. और अगर आपने किसी वोल्टेज V तक इसको चार्ज किया है V0 वगैरह तक, तो आप ये एरिया निकाल सकते हो. और इस एरिया से यू विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर. एरिया इज इक्वल टू
यू, और अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो सिंपली हाफ क्यू वी नॉट हो जाएगा, और इस तरीके का फॉर्मूला होता भी है, क्यू को आप सी वी लिख दोगे तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफिकली यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो अगर मैं सिंगल स्टेप के लिए पहले यहाँ पे करके देखूँ इसको, फॉर सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप के लिए लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ओके, सो ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और सपोज़ ठीक है, मैं उस वी नॉट को यहाँ पे लेता हूँ कि हमको वी नॉट तक यहाँ पे पहुँचाना है इसको, ठीक है, वी हैव टू गो टिल वी नॉट। तो ये वी नॉट की एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, और जब मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊँगा कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा यहाँ पे कैपेसिटर के लिए। तो अगर आप ये कंप्लीट एरिया निकाल लेते हो, ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस कंप्लीट एरिया, तो कंप्लीट एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो कंप्लीट एरिया बेसिकली यहाँ पर ये जो टोटल एरिया यहाँ पर आ रहा है वो वर्क डन बाय बैटरी होगा, ठीक है, दैट विल बी वर्क डन बाय बैटरी। और ये जो ट्राइंगल का एरिया है यहाँ पर, ये जो नीचे वाला जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, तो ये जो ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ये एरिया सिंपली यहाँ पर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज दिस पॉइंट इज़ ओ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, सपोज दिस इज़ बी एंड लेट्स से दिस इज़ सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दिस इज़ इक्वल टू यू, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो पूरा रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, दिस इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो ये वाला एरिया हो जाएगा ओ बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, दिस इज़ इक्वल टू हीट जनरेटेड, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो U है और यहाँ पर ये जो हीट है बोथ आर इक्वल, ठीक है, 50-50 हो रहा है यहाँ पे, 50-50% यहाँ पर बैटरी का जो वर्क डन है वो U और हीट में जा रहा है इसमें, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। अब मैं मल्टीपल स्टेजेस की अगर बात करूँ यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट मल्टीपल स्टेजेस। तो मल्टीपल स्टेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो जो Q है, आई थिंक आई नो दैट इज़ फाइनली सी वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ यू कैन राइट फ्रॉम द एरियाज़। अब मैं मल्टीपल स्टेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं 3 स्टेज के लिए ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ सिंपलिसिटी के लिए। तो 3 स्टेज, जैसे वहाँ पर चार्जिंग जो J का क्वेश्चन उसमें 3 स्टेजेस की बात है, तो मैं 3 स्टेजेस के लिए बार कर देता हूँ, और उससे हम समझ जाएंगे कि n स्टेजेस के लिए भी उसी तरीके का कुछ होना चाहिए। तो अगेन ऑन द y एक्सिस वी हैव v, हियर वी हैव q, ओके। और यहाँ पे डायरेक्टली वी नॉट की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, तो यहाँ पे मैं वी नॉट बाई 3 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई विल ड्रॉ, ठीक है। और वो जो लाइन है वो इस लाइन को मिलती रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए तो v वर्सेस q एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी रिलेटेड विद द कैपेसिटेंस, ओके। तो अब यहाँ पर पहली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ v नॉट बाई 3, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ 2 v नॉट बाई 3, उसके बाद लास्ट यहाँ पर ये v नॉट हो जाएगा। लेट अस एक्सटेंड दिस ऑल्सो, ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर ये। तो ये v नॉट बाई 3 हो गया, ये 2 v नॉट बाई 3 हो जाएगा, और ये एक तरीके से यहाँ पर ये v नॉट हो जाएगा। तो पहले केस में सिंपली ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हीट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दिस एरिया विल बी इक्वल टू द हीट जनरेटेड, ठीक है। और इतनी चार्जिंग यहाँ पर हो जाएगी, कहाँ तक चार्जिंग हो जाएंगी इसमें, यहाँ पर सी वी नॉट बाई 3 तक। अगला जो यहाँ पर है, तो अगला जो स्टेज है उसमें क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वी नॉट बाई 3 से 2 वी नॉट बाई 3 हो रहा है यहाँ पर इसमें, और इतना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। तो बैटरी का जो वर्क होगा ना, बैटरी का जो वर्क होगा वो तो ये पूरा एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये कंप्लीट एरिया बैटरी का वर्क होगा, जिसमें ये जो ट्राइंगल दिख रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये जो होगा
दिस विल बी द हीट जनरेटेड, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ नाउ द हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड नाउ विल बी दिस ट्राइंगल। इसी तरीके से अगला जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये जो ट्राइंगल एरिया है दिस विल बी द हीट जनरेटेड। तो अब सिंपली हीट जनरेटेड को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था कि ग्राफ वही था उसी तरीके का, और ये जो कंप्लीट ये ट्राइंगल था पूरा का पूरा यहाँ पर ये कंप्लीट हीट जनरेटेड था। अब के बार ये पोर्शन और ये पोर्शन हीट जनरेटेड में नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। दिस इज़ नॉट काउंटेड इन द हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, बस इतना ही है। तो इतना पार्ट यहाँ पर ये बच गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो तीनों के एरियाज़ हैं, तीनों एक जैसे ट्राइंगल यहाँ बनेंगे, तो तीनों का एरिया मिला करके कितना हो जाएगा। तो किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं। तो जैसे सबसे नीचे वाले का एरिया में निकालूँ तो हाफ, दिस लेंथ इज CV0/3 एंड दिस लेंथ इज़ V0/3, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ से जो हीट जनरेटेड है वो हीट जनरेटेड यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि 1/6 उसी तरीके का आ गया, 1/6 CV0², या फिर इसको ऐसे लिख लो कि 1/3 ऑफ हाफ CV0²। और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया सिंपली कितना आ रहा था V0 एंड दिस इज CV0, तो ये हाफ CV0², तो उसका 1/3 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ग्राफिकली वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग। सो देयर इज़ एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अनअकैडमी। सो बहुत जल्दी मैं अनअकैडमी पे आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस एंड यू कैन सी मी टीचिंग लाइव ऑन अनअकैडमी। सो दिस इज अनाउंसमेंट रिगार्डिंग UCL, Unacademy Champions League, and in this league you will give you can give all India level test and you can win prizes, and the test will be in 2 stages. So pehla stage will be group stage, and group stage will be conducted on these 3 dates. You can note these 3 dates: 10th, 14th and 21st of November. There will be 25 questions and time is 1 hour test. It is 1 hour duration. और उसके बाद में फाइनल स्टेज विल बी हेल्ड ऑन 28th of November, and number of questions asked will be 75 and you will have 3 hours. और कहीं किसी स्टेज पे अगर रेफरल कोड की अगर डिमांड होती है तो यू कैन गिव दिस रेफरल कोड आकाश IITD. Now the prizes. So obviously you can win prizes in the group stage also. Okay, so the good thing is you can win prizes in group stage. So group stage may for this much rank, so you can see the prizes associated with the ranks and scholarship, and you can also win in the finals. Obviously you can win in the finals, and these are the prizes and scholarship for different ranks. You can scan this QR code to enroll in this Unacademy Champions League, and as I have told you this you can use this reference code. if कहीं पर भी अगर इस reference code या कुछ भी अगर वो मांगते हैं तो you can give this code. This is Akash IITD. So this is about Unacademy Champions League.